নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এনডিএ চৰকাৰৰ হ্যাট্ৰিক দেওবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি কিছু ভিজুৱেলছ আমি লাভ কৰি আছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে শপত ল'ব যেহেতু এনডিএ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাই শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে এনডিএৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলৰ এয়া বৈঠক সংবিধান সদন অৰ্থাৎ পুৰণি সংসদ ভৱনৰ সেন্ট্ৰেল হল এতিয়া সংবিধান সদন অৰ্থাৎ পুৰণি যি সেন্ট্ৰেল হল আছিলে পুৰণি সংসদৰ সেন্ট্ৰেল হলত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত উপস্থিত আছে এনডিএৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ লগতে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত থকা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছে এনডিএৰ চৰকাৰ গঠনক লৈ বিশেষ চৰ্চাত থকা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু টিডিপিৰ মুৰব্বী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু আজিৰ বৈঠকত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এনডিএৰ নতুন চৰকাৰৰ ৰোডমেপ আৰু এই বৈঠকখনৰ বাবে উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ আহিছে উপস্থিত হৈছে এই বৈঠকত অংশ ল'ব আজিৰ এখন বৈঠকতে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এনডিএৰ নতুন চৰকাৰৰ ৰোডমেপ নতুন চৰকাৰত কি থাকিব কেনেকুৱা হ'ব গোটেই ৰোডমেপ ৰূপৰেখা আজি তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু এই বৈঠকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমন আদৰণি জনালে জেপি নাড্ডাই আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাব নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা এনডিএ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংসদ ভৱনৰ পৰা ইয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত ল'ব আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এইখন যি বৈঠক ইয়াত ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব যেহেতু এনডিএৰ চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হ্যাট্ৰিক বিজেপিৰ হ্যাট্ৰিক আৰু এনডিএ নেতৃত্বই আজি মিলি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আগমন এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব এনডিএৰ 14টা মিত্ৰ দলৰ সাংসদৰ সমৰ্থন পত্ৰ 14টা মিত্ৰ দল আছে 14টা দলেৰে এনডিএ যি গঠিত এই 14টা মিত্ৰ দলৰ সাংসদৰ সমৰ্থন পত্ৰ আজি ৰাষ্ট্ৰপতিক আগবঢ়াই দিয়া হ'ব এনডিএ সমৰ্থিত 14টা দলৰ আছে 293 গৰাকী সাংসদ আৰু দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে কেইবাগৰাকীও বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো লাইভ ভিজুৱেলছ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এনডিএ চৰকাৰৰ হ্যাট্ৰিক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হ্যাট্ৰিক এনডিএ চৰকাৰৰ হ্যাট্ৰিক দেওবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু তাৰ পূৰ্বে এখন যি বৈঠক स्वागत है भाई स्वागत है 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 हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे भारत माता की वंदे 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 स्वागत है भाई स्वागत है 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 हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है फिर तीसरी बार फिर तीसरी बार फिर तीसरी बार
आज इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करताल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे हमारे सभी एनडीए के घटक दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ
एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और यह सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी। साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से
इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है, उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है। और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को
दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब कुछ और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री
माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया। एजन शत्रु हो गल সেই সম্পৰ্কৰ পৰা ধৰি তাৰপিছত তেখেত আমাৰ এমপি হৈ আছে, মই এমএলএ, সেইকাৰণে সম্পৰ্ক আছে। ই ভুল বুজি কোনে তেখেতক উচতাই দিলে নাজানো। আনকি বিজেপিতে থাকিব বুলি দৃঢ় মন্তব্য আগবঢ়ালে মৃণাল শইকীয়াই। আৰু বেলেগ পাৰ্টিত যোৱা প্ৰশ্নই নাই, দোকানলে এমএলএ নহওঁ, কাৰণ আমি 94ত আমি ইয়াত 94ত বিজেপি এনেকুৱা নাছিল যে ইয়াত আজি চৰকাৰ হ'ব কিবা হ'ব, তেতিয়াই আমি জইন কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াই বেলেগ পাৰ্টি জইন কৰা হ'লে তেতিয়াই এমএলএ হ'ব পাৰোঁ। আনহাতে মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্যক লৈ দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। গোটেইখিনি কথা আমি চৰ্চা কৰিম, অকল মৃণাল শইকীয়া নহয়, আমি যোৰহাট লোকসভাত কিয় হাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰ্যালোচনা। ইফালে মৃণাল শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈক অভিনন্দন জনোৱাৰ পিছতে বিজেপিত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈছে দুই বিৰোধী দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈ। বিজেপিৰ লিডাৰবিলাকে এতিয়া বিজেপি দলটো যে অহংকাৰী হৈ পৰিছে এফালৰ পৰা কৈ আছে। কালি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিধায়ক তেখেতে স্পষ্টভাৱে বিজেপি কিমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে সেই কথা কৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে উদঙালে যোৰহাটত বিজেপি নেতৃত্বৰ ফুকিলা স্বৰূপ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 9টাতে পিছ পৰি ৰয় বিজেপি। দক্ষ নেতৃত্বৰ অভাৱ তথা অন্তঃকণ্ডলত জৰ্জৰিত বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ বাবেই যোৰহাট জিলাত কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে 92,701 ভোট অধিক লাভ কৰে। ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰ জিলাত গৌৰৱ গগৈয়ে 34,995টা ভোট আৰু চৰাইদেউ জিলাত 19,964টা ভোট তপন গগৈতকৈ অধিক লাভ কৰি অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হয়। বিজেপিয়ে কেৱল 6,586টা ভোট মাজুলীত অধিক লাভ কৰে। বাকী 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈয়ে তপন গগৈতকৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত 11,907টা, তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিত 23,697টা, তিতাবৰ সমষ্টিত 40,070টা, মৰিয়নীত 17,027টা, শিৱসাগৰত 18,748টা, ডিমৌত 16,050টা, মাহমৰত 9,630টা অধিক ভোট লাভ কৰে। তপন গগৈৰ খুদ গৃহ সমষ্টিৰ সোণাৰীতে তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে 10,334টা ভোট অধিক লাভ কৰে। তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈয়ে পোৱা ভোটৰ ব্যৱধান আছিল 127টা। Respected NDA partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign for the 3 months, honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings,
one big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed one meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I'm thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all, everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us has to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where
We are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism. That is বাতৰিয়াক ভূতপূৰ্ব ফলাফলৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইয়াত 100% বিজেপি নেতাৰ অৰিহণা আছে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমাৰ এটা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বিজেপি অহংকাৰ আজি জনসাধাৰণে ভাঙিছে। মই জনসাধাৰণক কেতকেইটা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ, সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যথেষ্ট ৰাইজে ভোট দিছে, আশীৰ্বাদ দিছে। এতিয়া আৰু এইটো বৰ্তমানৰ সদনৰ ভিতৰত যদি অসম বিৰোধী আইন বিজেপি আনিবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ওচৰত এতিয়া সংখ্যা আছে, আমি সেই আইনবোৰ বাতিল কৰিব পাৰোঁ। উল্লেখ্য, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যোৰহাট জিলাকে মুখ্য কৰি আটাইকেইখন জিলাতে বিজেপিৰ অধিকাংশ নেতাৰ নিজ নিজ পঞ্চায়ত, ৱাৰ্ড তথা বুথ বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছে অধিক ভোট লাভ কৰিছে। ইফালে যিসমূহ বুথত বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শন বেয়া, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। দলৰ এগৰাকী যিটো মই কাৰ্যকৰ্তা, গতিকে দলৰ বিষয়ে মই সংবাদ মাধ্যমত কোৱাৰ বিপৰীতে মই মৰ্যাদাত এই কথা উত্থাপন কৰিম আৰু এই বিষয়টো নিশ্চিত ওপৰত উত্থাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো বহুত এটা চেঞ্চিটিভ বিষয় এটা আমাৰ দলৰ কাৰণে। কিন্তু আজি যোৰহাটৰ যিটো বিপৰ্যয়, এই বিপৰ্যয়ৰ নিশ্চিত ওপৰত দলৰ মৰ্যাদাত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ স্বাভাৱিকতে হতাশ হৈ পৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব। উজনি অসমত মান ৰাখিব নোৱাৰা সমষ্টিটোৰ ফলাফলক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। যোৰহাট আমাৰ পৰাজয় হৈছে, এই পৰাজয় আমি মন্থন কৰিম, কি কাৰণে ক'ত কি ঘটিল, কিদৰে আমি তাত বঢ়াব লাগিব বা আমাৰ কি ৰণকৌশল ভুল হৈছিল, নিশ্চিতভাৱে আমি ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। যোৰহাট সমষ্টিৰ মন্থন হ'ব, ক'ত কিয় হ্ৰাস, ভোট বিশ্লেষণ কৰিব বিজেপিয়ে। যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে আমি ষ্টাডি কৰিম, আমি অভাৰকাম কৰিবই লাগিব তাত আগন্তুক। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীৰ গড়চুকত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড, অপহৃতক মুক্তিপণ বিচাৰি 1 লাখ টকা ধন দাবী। এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী।
গড়চুক থানা এলেকাৰ পৰা এগৰাকী লোকক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। দুৰ্বৃত্তই অপহৃতক মোকলাই দিয়াৰ নামত দাবী 1 লাখ টকা। ISBTত দাবী কৰা ধন দিবলৈ আহি জালত পৰিল অপহৰণকাৰী। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰা এইটো অভিযুক্ত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। अपहरण कांडत व्यवहार बहुत अच्छा है और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोग के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है।
और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभाव है, एक्स सीएम है, वहाँ हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है, और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी हारे कि 400 বাহন উদ্ধাৰ কৰিছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে। এতিয়াও পলাতক অপহৰণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইমৰান খান। হয়, এইটো ধৃত ৰবিউল ইছলাম এণ্ড গেঙে ধনৰ বাবে উঠাই নিছিল হাবিবুৰ ৰহমানক। পিছে এই কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীৰ গড়চুকত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। অপহৃতক মুক্তিপণ বিচাৰি 1 লাখ টকা ধন দাবী। এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। গড়চুক থানা এলেকাৰ পৰা এগৰাকী লোকক অপহৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। দুৰ্বৃত্তই অপহৃতক মোকলাই দিয়াৰ নামত দাবী 1 লাখ টকা। ISBTত দাবী কৰা ধন দিবলৈ আহি জালত পৰিল অপহৰণকাৰী। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰা এইটো অভিযুক্ত পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। অপহৰণ কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা এইখন 4 চকীয়া বাহনো উদ্ধাৰ কৰিছে গড়চুক আৰক্ষীয়ে। এতিয়াও পলাতক অপহৰণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইমৰান খান। হয়, এইটো ধৃত ৰবিউল ইছলাম এণ্ড গেঙে ধনৰ বাবে উঠাই নিছিল হাবিবুৰ ৰহমানক। পিছে এই কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। इसका अनुमोदन प्रस्ताव। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी उपस्थित नेतागण, नवनिर्वाचित एनडीए के सभी संसद सदस्य और मेरे साथियों, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और जो नवनिर्वाचित संसद सदस्य बने हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है। वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते मैं पूर्ण विराम लेता हूं। जय हिंद। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आए।
मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित भारत नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध नेता माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी और सभी एनडीए के साथीगण और खास करके जो नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण आए हैं, उन सबों को हम अपने दिल के गहराइयों से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत लंबी कोई बात नहीं कहनी है, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। और एक ही बात मैं कहना तो चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना दल पार्टी की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। करोड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, केंद्रीय कक्ष में मौजूद एनडीए के सहयोगी दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रीगण,
और हमारे एनडीए परिवार के देश के कोने कोने से जनता का विश्वास प्राप्त करके यहाँ पर नवनिर्वाचित होकर आए सभी माननीय सांसदगणों का मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। To the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh. Under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir.